Good morning, student. This is your first lesson of Hornbill, the portrait of a lady, written by Khushwant Singh. This lesson gives us a picture of human relationship in a joint family. It is a factual description, a realistic account of how the grandparents give all their time, attention, and love to their grandchildren. Let's begin the story. Let's begin the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been pretty young and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Now, the author's grandmother was an old woman. Her face was wrinkled all over. For 20 years, the author had seen no change in her looks and behavior. So that's why it is difficult to believe that she too had once been a playful child or a pretty young woman with a husband. तो ऐसा पोइट ऑथर क्यों कह रहा है? क्योंकि मे बी ऑथर अराउंड 20 ईयर्स के थे, क्योंकि वो 20 ईयर्स से अपनी ग्रैंडमदर के साथ रह रहे थे. तो जब से वो इन 20 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ अपने ग्रैंडमदर को ही देखा है. ग्रैंडफादर को कहाँ देखा है? जस्ट उस वॉल में, उस पोर्ट्रेट में, उस पिक्चर में, फोटोग्राफ में, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऊपर सर पे पगड़ी पहनी है और उनकी वाइट बियर्ड है, जिसे देखकर अप्रॉक्स उनकी एज एस्टिमेट हो रही है, अप्रॉक्स 100 ईयर्स. सो आगे वर्ड यूज़ किया गया है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. दैट मीन्स द आइडिया वॉज डिस्गस्टिंग. विच आइडिया? ये सोचना कि उनकी ग्रैंडमदर कभी यंग और प्रिटी भी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को हमेशा कैसा देखा है? हमेशा क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर. मीन्स उनके ग्रैंडमदर के फेस में रिंकल्स हैं जो कि ओल्ड एज में अक्सर हो जाते हैं. अब आगे डिस्क्रिप्शन है कि उनकी ग्रैंडमदर कैसे दिखती थी. तो शी वॉज शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंड, एंड हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो कि ओल्ड एज में रिंकल्स होना नॉर्मल बात है. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. So, no, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old, that she could not have grown older. So terribly means frightening. So, old that she could not have grown older. तो अपनी ग्रैंडमदर के लिए कह रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा
ओल्ड हो गई थी कि इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती हैं। ऐसा राइटर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। वो ऑथर उनके साथ 20 ईयर्स से रह रही हैं, जब से उन्हें वो वैसी ही दिख रही हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी but she was always beautiful. So according to author, what she thinks that she could never be pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance a stoop and the other telling the beads of her rosary. Now, what is stoop? Stoop is a swoop or bent of the body. ठीक है. एंड बीड्स ऑफ हर रोजरी मीन स्मॉल बॉल्स ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूज फॉर प्रेयर्स. जो प्रेयर करने के लिए जो माला जपते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द बीड्स ऑफ हर रोजरी. दिस वन. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. अब आगे राइटर क्या कह रहा है? सिल्वर लॉक्स मीन्स वाइट हेयर्स. उनके हेयर्स के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है? सिल्वर लॉक्स. वो स्कैटर्ड अनटाइडेडली मीन्स बाल पूरे खुले हुए से थे, एंड स्कैटर्ड अनटाइडेडली फैले हुए थे, अनटाइडेडली इन एन डिसऑर्डरली मैनर. एंड पकर्ड मीन्स रिंकल्ड. Puckered feet means wrinkled face, and her lips constantly moving in inaudible prayer. और जो उनके lips थे वो inaudibles जो आप सुन ना पाओ. और क्या कर रहे थे वो? मनी मन मंत्र प्रे कर रहे थे. ठीक है. तो जाप कर रहे थे. कैसे जाप कर रहे थे? जो माला होती है जपने की, उसके उस बीट्स को गिन गिन कर जाप करती थी. कौन? ऑथर की ग्रैंड मदर. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity. So, an expanse of pure white serenity is silence with white hair and white clothes spread in the house. जिस तरीके से वो. So here in this line, author is telling that she looked like a winter landscape in the mountains. She always carried a rosary in her hands, which she kept counting. Her lips were always moving quietly in prayer. She was a picture of peace and contentment, which means an expanse of pure white serenity means कि चारों तरफ जो माहौल था वो शांति भरा था. और ड्यू टू जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की, उनके वाइट हेयर्स थे, वाइट क्लोथ्स थे, और एक पॉजिटिविटी थी घर पर. क्योंकि वो हर वक्त चैंटिंग करती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी विद दैट बीट्स. तो इस तरीके से इसको कंपेयर किया है. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी की हर तरफ चारों तरफ शांति का एक साइलेंस थी, पीस थी घर पे, और पॉजिटिविटी थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे ऑथर अपनी और अपनी ग्रैंड मदर के रिलेशंस की बात कर रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर और वो एक अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लिव्ड मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. तो यहाँ आगे उनके पेरेंट्स ऑथर को छोड़ के जा चुके थे, और वो अपनी सिटी में वो रहते थे पेरेंट्स उनके, और वो अपनी दादी के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहते थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो आगे वो बता रहे कि मॉर्निंग में हर सुबह उनकी ग्रैंड मदर उनको उठाया करती, रेडी करती, और रेडी करते करते, नहाते हुए, ड्रेस करते हुए वो मॉर्निंग में प्रेयर्स गाया करती. वो इसलिए गाया करती कि जो ऑथर है वो डेली जब उसको सुनेंगे तो वो उन्हें याद हो जाएगा. आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. और ऑथर उससे सुनना पसंद करते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था, जैसे उनकी दादी की आवाज़ उन्हें पसंद थी, बट कभी उन्होंने लर्न करने की मतलब से कभी नहीं सुना. देन शी वुड फैच माई वुडन स्टेल
which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद जो उनका वुडन स्लेट था जिसमें छोटे बच्चे जब चॉक से लिखते हैं, दैट इज़ वो स्लेट उनका वुडन था, उसको वॉश करती थी अच्छे से, येलो चॉक से प्लास्टर करती थी। उनका एक टाइनी इंक पॉट था, उस टाइम इंक से लिखा जाता था, एक रेड पेन टाई। तो ये जितना भी उनका स्कूल का मटेरियल था, ये सब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको बंडल करती और उसके बाद उसे ऑथर को दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। इसके बाद ब्रेकफास्ट में उनकी ग्रैंड मदर अक्सर क्या दिया करती हैं, चपाती जिसमें बटर लगा हो और ऊपर शुगर स्प्रेड किया है, वो ऑथर को देती। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और उनकी ग्रैंड मदर उनको कहाँ स्कूल छोड़ने जाती, हमेशा उनके साथ, ऑथर के साथ, और साथ में कुछ चपातीज भी ले जाती। किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा स्कूल जाती ऑथर के साथ। क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल के साथ अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी थे वो बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते, while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and uh, fighting with each other for the chapatis we threw to them. इसके बाद वो बता रहे हैं कि जब बच्चे पढ़ते हैं वरांदा में, अब वो सिंगिंग करते हुए अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं या प्रेयर्स गाते हैं, तो उस वक्त उनकी ग्रैंड मदर अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती, और उसके बाद जैसे ही स्कूल ख़त्म होता तो वो दोनों साथ में वापस घर जाया करते। और जो स्ट्रीट डॉग्स थे वो उनके पीछे पीछे हमेशा जाया करते। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर उन्हें चपातीस देती थी, और इसीलिए वो पीछे पीछे एक दूसरे से लड़ते हुए कि किसको कौन सी चपाती मिलनी है, वो आपस में फाइट करते करते पीछे पीछे जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब उनके पेरेंट्स अच्छे से सिटी में सेटल हो गए तो उसके बाद उन्होंने उनकी ग्रैंड मदर और ऑथर को वहाँ पे आने के लिए, सिटी में आने के लिए कहा, और यही दोनों के रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि सिटी में जाने के बाद भी वो सेम रूम शेयर कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ग्रैंड मदर उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं आया करती। I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city's house. अब ऑथर एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाया करते, और अब वहाँ स्ट्रीट में कोई डॉग भी नहीं था, जिससे इसलिए जो उनकी ग्रैंड मदर है वो स्पैरोज़ को फीड किया करती। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and the little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes' principles, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd association. It was the monopoly of hard lords and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. Now,
उनकी ग्रैंड मदर और उनके बीच में एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे ही ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में वो गैप भी बढ़ता गया। अब स्कूल ऑथर जब स्कूल जाते तो वापस आते तो अक्सर वो पूछा करती उनकी ग्रैंड मदर कि टीचर ने आपको क्या सिखाया, जिस पे वो बताते कुछ कि इंग्लिश के वर्ड्स, लिटिल थिंग्स, साइंस से रिलेटेड एंड आर्किमेड्स से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज आर्किमेड्स? सो ग्रेविटी इज पावर टू अट्रैक्ट, जो आप साइंस में भी पढ़ते हो। और जो आर्किमेडीज हैं वो एक मैथमेटिशियंस थे, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, जिन्होंने कुछ रेशोज एंड योर सर्कमफ्रेंस, रेडियस ऑफ सर्कल, ये सब इन्वेंट किया था। तो उनके बारे में ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को बताया करते। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब जानकर जो उनकी ग्रैंड मदर है वो थोड़ी सी अनहैप्पी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स द टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो किस बात से नाराज़ रहती कि वो सब इंग्लिश स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन ऑथर ने बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स भी दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और इस बात से तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड मीन्स वल्गर, इनडिसेंट। तो वो म्यूज़िक उनको वल्गर लगते थे, इनडिसेंट लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। अब वो उन्हें क्यों नहीं लगता था? मोनोपोली मीन्स वंस एक्सक्लूसिव राइट, हर एक किसी एक का अधिकार। एंड हार्लॉट मीन्स उन्हें जो ये इस तरीके के गाने थे वो उनको डिसेंट नहीं लगते थे, जेंटल नहीं लगते थे, जैसे कि वो पहले विलेज में सुना करती थी और सुनाया भी करती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, ग्रैंड मदर ने ऑथर को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी साइलेंस में ही समझ आ रहा था कि उन्हें ये सब पसंद नहीं है। और उसके बाद से उन दोनों का जो गैप है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप था, बॉन्ड था, वो गैप और ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो बहुत मुश्किल ही से बात करते थे एक दूसरे से। When I went to university, I was given a room of my own. The common link of friendship